जय हिंद स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद आप सभी लोगों को। मेरा नाम नागेंद्र है, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूं। मैंने आईआईटी से बीटेक किया हुआ है और आप सभी लोग दुनिया के सबसे शानदार, सबसे ज़्यादा अनुशासित, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाले बच्चे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस, लेक्चर नंबर 13 है ये, एंड वी हैव सीन लेक्चर नंबर 12 टुडे वी विल कंक्लूड द रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन. So we have seen a number of beautiful concept and then their application of the different different aspects of the resonance, like resonance energy, stability, plus R, minus R, and what's the relationship between resonance and mesomeric effect? Is it the same or different? I mean, we have seen all those things. Okay, so today's content is a very important. First of all, I will start with a little bit quiz, just to check whether you have all those things in your mind or not, है ना? ओहो सक्षम, थैंक यू, एंड जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा. So today we will see first of all some quiz in which we will just cover up acidic strength and different aspects of the resonance, and very beautifully. Then after we will cover 1-2 addition, 1-4 addition, and then Michael addition. Oh my God, Michael नाम ही बहुत अच्छा लगता है ना. Once I was in Shillong in tour, so I have a driver named as Michael, so Michael addition, it's a very interesting name. Then dipole moment and then quizzes. Dipole moment separately I have discussed in a separate class. I have once delivered to dipole moment, so I think you all would be confident over this, but still we will see some of the problems here. Okay, come on. So let's start with the quiz. Hey guys, are you all ready? Anudeep, Aditya, Saksham, Kuldeep, Rimjhim, Rajesh, everyone, are you all ready for the quiz? माइकल नाम रियली बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल कहानी है इसके पीछे. वो माइकल एडिशंस में बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं. ओके, देन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुदगुदी करने वाले सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू, यू ऑल आर रेडी. लेट्स सी द क्वेश्चन. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. Arrange in increasing acidic strength order. You can say compare the acidic strength order of these two. तो A and B के acidic strength को डिस्कस करना है. Chloroform and fluoroform. What we call it as chloroform. It's a fluoroform. Do it. Just take time. 45 seconds. I just have a hint for you guys. क्या करोगे? Just remove H plus, form an ion, then check the stability of an ion. More the stability of an ion, more will be tendency of its formation and more will be the acidic strength. Just do it. Don't leapfrog. कूद के मत जाओ. Take time, remove H plus and then think out. Okay, time is 45 seconds. Time starts now. Just do it. Come on. Oh my God, मेरा टाइम शुरू करने के पहले आप लोगों ने कर लिया है. खतरनाक हो आप. बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त. तुम लोग कुछ धमाल मचाने वाले हो, बहुत बड़ा काम करने वाले हो, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप लोग. मैं हर दिन ये महसूस करता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग जैसे बच्चे मिले. रियली, आई एवरी डे फील लाइक दिस. बहुत बढ़िया, गजब. सब लोग का आंसर आ जाए बच्चों. तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. लेट्स सी नाउ. मैं डिस्कस करता हूँ. और कैन यू ऑल सपोर्ट योर आंसर बाय द लॉजिक इन वन वर्ड और वन स्टेटमेंट? हेलो एवरीवन, बच्चों, can you all support your answer? Like someone has said B A, someone say A B, someone say B is in higher side, stronger. So can you all support your answer by just विश्वजीत ने कहा back bonding. Good. अंकित कह रहे हैं vacant D orbital. Wow. तुषार कह रहे हैं कंजंक्शन वर्सेज रिपल्सन, कंजुगेशन, ओके, वर्सेज रिपल्सन. रितिका कह रही है एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन.
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आदित्य राज कौशिक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। और आप लोग जहाँ बैठे हो वहीं पर मेरे आदर्श तो मानती हो तुम लोग, ताली बजा दो अपने लिए, उसको महसूस करो, उस रेजोनेट को, रेजोनेंस हो जाओ उसके साथ में, एनर्जी बढ़ जाएगी। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल कॉन्सेप्ट, जैसे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। और देखो कैसे करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया तुम लोग कर रहे हो। सवाल बनाना शुरू किए कि नहीं होता तुम लोग? जो मैंने शीट शेयर किया है वेब पोर्टल पे, पूरा ट्राई कर लो, नहीं किया तो ट्राई कर लो भाई। देन हिमांशु पांडे पूरा बना डालो, पहले वो, फिर हिमांशु पांडे, एंड देन जिस भी एग्जाम की तैयारी, था हिमांशु पांडे IIT का अलग है, नीट का अलग है, फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी करो सब सारे सवाल बना लो, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंट नहीं, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा आने लगेगा, चटनी की तरह बन जाएगा। मतलब तुम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, या मैथ्स बायोलॉजी पढ़ते थक जाओगे, थोड़ा सवाल बना लो केमिस्ट्री का, तो फिर से मजा आ जाएगा। जस्ट डू इट। और तुम लोग इतने प्यारे बच्चे हो ना, आई जस्ट लव यू ऑल यार। नो, लेट्स सी व्हाट आई हैव डिस्कस विद यू। जस्ट रिमूव H+ फ्रॉम हियर एंड वी विल गेट CCl3 minus. CCl3 minus. Similarly do here, it will be CF3 minus. Beside H+, H+ obviously will be here, one of the product. Now let's see बच्चों, आप सभी लोगों ने सही आंसर किया, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। गजब। आई नो, मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे ये विश्वास नहीं था, कि मुझे लगा कि आप लोग अंड बंड कुछ लिखोगे, कुछ गलतियाँ करोगे, एंड देन आई विल करेक्ट इट एंड आई विल जस्ट एक्नॉलेज यू अबाउट द रीज़न फॉर स्टेबिलिटी। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, बट यू ऑल हैव डन करेक्ट यार, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया। सो सी बच्चों, मज़ेदार बात क्या है, सभी ने बताया कि यहाँ वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये परेशान किस वजह से, इस लोन पेयर की वजह से, यस, और ये लोन पेयर इसमें डिलोकलाइज हो रहा है। ओह माय गॉड, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो सभी लिखा वैकेंट d ऑर्बिटल और सब कुछ। यहाँ पे क्या है, लोन पे ये सेकेंड पीरियड क्या है, फ्लोरीन। तो सेकेंड पीरियड मतलब n is equal to 2. So as we all know, 2d orbitals does not exist. 2b orbital does not exist and therefore there can't be the similar case here. ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है जो कि मैंने देखा, शायद तुषार ने बोला हुआ है ना, लेट्स सी। मैं तुम लोग सभी लोगों को नाम से जानता हूँ, चेहरे से तो नहीं जानता। कितनी दिक्कत है, कई लोग चेहरे जानता हूँ मैं, जिनको मैंने 1 साल पढ़ाया है, लेकिन बहुत लालायित हूँ तुम लोगों के दर्शन करने के लिए और बहुत कनेक्टेड हो गया हूँ यार। सी, ये लोन पेयर है यहाँ पे, और बच्चों को ध्यान सुनना, अगर A और B दोनों सेकेंड पीरियड के हों, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर A और B दोनों सेकेंड पीरियड के हों और दोनों के पास लोन पेयर है, बोथ पोसेस लोन पेयर्स, दोनों के पास लोन पेयर, बोथ पोसेस लोन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर हैं, ओके, दोनों के पास लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन वर्क करता है, सिग्निफिकेंट होता है। वो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाती है। बट यू शुड रिमेंबर द कंडीशन फॉर दिस, इफ बोथ A and B belongs to second period, both keep in mind, please note it down, and both possess lone pairs, दोनों के पास लोन पेयर्स हो बच्चों, and lone pair repulsion, then it will work. So here यहाँ पे भी लोन पेयर है, both are of second period, and so repulsion, lone pair repulsion will also work here, but not in this case. Here chlorine belongs to third period, so lone pair repulsion will be insignificant here. Okay guys, हेलो बच्चों, एंड देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन इज मोर देन दिस वन। ये बना कैसे है, H+ निकलने से, इट मीन्स क्लोरोफॉर्म विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। मैं तो कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आपको पता ना हो। अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टाइम allotted is 45 seconds. Time starts now. Come on guys, 45 seconds में answer this one, acidic strength order.
लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। बहुत बढ़िया। अमीषा, आदित्य, सक्षम, विश्वजीत, श्रेया, अनंत। लेट्स सी नाउ। संकेत, रितिका, चंदा, रिमझिम, बहुत बढ़िया। पवन, कुलदीप। लेट्स सी नाउ, डिस्कस एंड लेट्स चेक योर आंसर ना। शिवम, श्रेष्ठ, कम ऑन। देखो, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मतलब ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करता है? आयोडीन। फिर कौन करता है? फ्लोरीन। फिर कौन करता है? ब्रोमीन। और सबसे कम कौन करता है? क्लोरीन। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट वेरी थॉरली एंड आई हैव टोल्ड एट दैट टाइम टू यू टू मेमोराइज एंड टू नोट डाउन समवेयर एल्स। सो आई बिलीव कि आपको पता होगा कि अगर आयोडीन कनेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब अगर आयोडीन ये लगता है अगर बेंजीन रिंग पर, तो आयोडोबेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। वी हैव डिस्कस्ड इट, वाई, बिकॉज इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत पुअर है, इलेक्ट्रॉन कम खींचता है। तो प्लस आर भी पुअर है ना, इन कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स दिस इज एंड वी हैव डिस्कस अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी नाइट्रेशन रिएक्शन। डू यू ऑल रिमेंबर? हेलो, क्या आपको याद है? नाइट्रेशन रिएक्शन में मैंने कहा था इसका पॉइंट अगर इसका 0.02 हो जाता है, इसका 0.06 हो जाता है, इसका 0.11 हो जाता है, इसका 0.16 हो जाता है। रिलेटिव रेट्स ऑफ द रिएक्शन नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन मतलब अगर क्या कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप अटैच है, वो ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितना मान लिए थे हम लोग? 1.00। दीज आर रिलेटिव रेट्स। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1-2 लेक्चर पहले, शायद आपको याद होगा। यस, तो हाइड्रोजन को 1 मान लिया हमने, तो आयोडीन, तो भैया इसके ऊपर NO2+ के रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सब बातें की गई थी। अब सोचो, मुझे डेटा याद है, पता है मेरी मेमोरी इतनी कमज़ोर है कि मुझे सब कुछ भूल जाता है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं भूलती। नहीं मैं खाऊंगा यार, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। बाय द वे बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन वाले में फ्लोरीन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, और ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं। देयरफॉर हाइड्रोजन जब कुछ नहीं है तो सबसे ज़्यादा 1 है। दैट वी हैव डिस्कस। सो अब देखो, ये जानने के बाद इन दोनों मालूम चला कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन के तुलना में। तुम्हें ये पता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मामूली चीज़ हो गया। यूँ चुटकी बजाय सवाल खत्म हो गया। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसके तुलना में। दोनों घटा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। कि कैसे मालूम घटा रहे हैं? कि हाइड्रोजन जब कुछ नहीं था उसके तुलना में रेट ऑफ रिएक्शन घटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा है। All are decreasing electron density, so decreasing rate of reactions, all, everyone, but their relative rates. So fluorine comparatively कम घटाएगा, क्लोरीन ज़्यादा घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सो देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी की तुलना में। ये छोटी जानकारी कितना हेल्प करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सी यार बेंजोइक एसिड है भाई, वो अलग ही स्ट्रीम पर जी रहा है। जैसे मान लो कहीं पर ITI कॉलेज है, तो उसमें कोई लड़का टॉप किया, अपना कॉलर खड़ा किया, हम ITI टॉपर है अपने कॉलेज के। कहाँ पढ़ता है? कहाँ ITI? बगल में IIT वाला है, वो टॉपर नहीं अपने क्लास में, मीडियोकर है। लेकिन क्या ये टॉपर कॉलर खड़ा कर सकता है उसके सामने? बिल्कुल नहीं। उसको अपना कॉलर नीचे करना पड़ेगा, समझ लो, क्योंकि ITI का टॉपर है यार, IIT का नहीं। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी की ज़िंदगी कमज़ोर ख़राब है, बट कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। ये देखो फेनोल है यार, फेनोल का एसिडिक कैरेक्टर कैन कंपेयर अमॉन्ग ईच अदर, बट द बेंजोइक एसिड, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस वन इज मोर मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन हो जाएगा? सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई पूछे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, तो तुम याद करो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो क्या भाई, अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे कम कौन हुआ? बी, देन ए, एंड सबसे ज़्यादा सी, BAC। ओहो ग्रेट। सुचिस्मिता, शिवम, कुलदीप, ऋतिक, सक्षम। हाँ ये देखो अंग्रेजी में बोला है ये,
हमारा दोस्त सक्षम कह रहा है बेंजोइक एसिड रॉक्स हियर, गुड। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मुझे पता नहीं कैसे फिगर भी याद था, आपको भी शायद याद होगा। चलो अब पढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तुम्हें आज एक नई बात जानने को मिलेगी रिएक्शन के विषय में। कई लोग, एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें अगर कोई प्रधानमंत्री बना देना ये अक्सर बहुत सारे लोग कह ही लेते हैं कि मुझे कोई प्रधानमंत्री बना देना तो मैं देश को कहाँ से कहाँ ले जाऊँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आया, कहाँ से कहाँ ले जाएगा भगवान जाने, बट कहते ऐसे ही हैं। कहते देखो ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे गंदगी है, इसको यहाँ पे आदमी ये लगवा देता, ये कर देता, वहाँ वो कर देता, वहाँ वो कर देता, ये ऐसे बना देता, लोगों को ऐसे अंड बंड बातें। तो अब वो कह रहा है, वो अब ऐसे पूरी ज़िंदगी में कह रहा है। वो अगर उसको सही में प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पता नहीं हो सकता कर भी दे, पता नहीं, डोंट नो, तो चेक करना होगा, है ना। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है, हाँ निबंध भी लिखते हैं, आदित्य कह रहे हैं इसमें सही में निबंध लिखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखना भी चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है वो प्रधानमंत्री हो ही नहीं पा रहा है। हो जाए तो शायद सही में देश का कल्याण कर दे, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री होने के लिए एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए बहुत, उसकी भी, और शायद अच्छे नीयत की बात कर रहा है। तुम लोगों में कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरे बच्चे हो तो अच्छे तो हो गए ही हो गए। मैं तो अच्छी बात बताता हूँ भाई, है ना, मैं सबकी हेल्प करने की बात करता हूँ और अच्छे संस्कार लेता हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप लोग बनोगे देश का ज़्यादा कल्याण होगा। लेकिन अब मुश्किल यहाँ पे क्या है, उसका बैरियर बहुत ज़्यादा है। तुम बन जाओ तो तुम्हारा भी और इस देश का भी, मानवता का भी कल्याण होगा, आई एम बिट श्योर। लेकिन दिक्कत क्या है, तुमको बनने में क्या दिक्कत है, बैरियर बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ लोगों में से कोई एक बनेगा, कंपटीशन इज़ वेरी हाई, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ध्यान सुनना, मैं फिर केमिस्ट्री पर आ गया। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट प्रोडक्ट बन नहीं पा रहा है नॉर्मली। कई लोग ऐसे हैं जो बाकी लोगों को भी लगता है अगर वो बन जाए तो देश का बहुत कल्याण हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट उन लोगों को मौका नहीं मिलता है, बिकॉज इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट बन जाए तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाए, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसमें बैरियर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इसीलिए कोई अगर बहुत ध्यान सुनना, कोई ऐसा बंदा है जिसमें डिजर्वनेस नहीं है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, डिजर्व मतलब डिजर्वनेस, मान लो इंजीनियर बना तो डिजर्व कर रहा, मतलब उसको नॉलेज है इंजीनियरिंग का, ये सब उससे बातें नहीं कर रहा, वो वहाँ जाए घोटाला करना शुरू कर दिया, ये गड़बड़ कर रहा हो। तो डिजर्वनेस मतलब बोल रहा हूँ कि वो समाज के लिए अच्छा सोचता हो, इनोवेटिव चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहता हो, और वो सब करके उसको अच्छा लगता हो, वो बड़ी बात ये है। तो इस तरह का डिजर्वनेस नहीं है, लेकिन मेहनती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वेल इक्विप्ड है, या फलाना डिम का, तो वो कर करा के अपना निकाल उकाल के IIT FIIT इंजीनियर तो बन गया। लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इंजीनियर, बहुत ही रद्दी घटिया किस्म का प्रोडक्ट बना, और वो कर रहा है घोटाला, खूब सारा घोटाला समाज में, लेकिन बन गया। क्यों? इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। क्यों? इसकी या सॉरी, एक्टिवेशन इसे मानो ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जितना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे रहा है। और यू कैन से, आप ऐसे समझो कि ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो जो बैरियर है उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, राइट। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ बच्चों कि कोई प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर, बच्चों ध्यान सुनना रे, ध्यान सुनना रे, कोई प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर पे कई बार नहीं बन पाता है, नॉट ऑलवेज, कई बार नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको बनने के लिए बैरियर बहुत बड़ा होता है। तो जब वो बहुत जैसे कई बच्चे तुम में से होंगे जो एम्स नीट उट करके फोड़ फाड़ के एम्स चले जाएं, या मौलाना या कहीं पर, और डॉक्टर बन जाएं, या लेडी हार्डिंग लड़कियाँ चली जाएं,
वो जो डॉक्टर बने, तो वो अच्छे नीयत का है क्योंकि नाग सर का स्टूडेंट है, तो वो पहुंच ही नहीं पा रही है या पहुंच जा रहे हैं, कुछ वहाँ नहीं पहुँच, कहीं और पहुंच जा रहे हैं क्योंकि गैप वो बैरियर बहुत ज़्यादा है। अब कुछ जो हैं रगड़ के मेहनत की है, वो बैरियर जो चाहिए उसको ओवरटेक कर लिए, अब पहुंच गए, बट वो उतने अच्छे नीयत का नहीं है। बच्चों मतलब समझो मेरी बात, एक रिएक्शन है, अरे बच्चों का ध्यान सुनना, एक रिएक्शन है, कोई रिएक्शन वो दो रास्तों से हो रहा है, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये समझोगे तो हर जगह काम आने वाला हम लोगों को। इस रास्ते में इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट यहाँ 2, और इसमें हमको प्रोडक्ट बना 1 और यहाँ प्रोडक्ट बना हमको 2। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? बहुत गौर समझना इन सब बातों को। अब क्या हुआ बच्चों, सपोज करो, मान लो, ये हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ऐसा होगा तब क्या होगा। सपोज करो स्टेबिलिटी जो है, सपोज करो स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट P2 की P1 से ज़्यादा है और इंटरमीडिएट I1 की I2 से ज़्यादा है। ठीक है, वो ध्यान समझना। हम लोग कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि रिएक्शन वो होगा जिसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो यहाँ इंटरमीडिएट कौन स्टेबल है? I1, ये बन जाना चाहिए, तो मतलब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? P1। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग ये भी देते हैं, बहुत ध्यान सुनना, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त है और इन सब बातों को अलग से नोट करते जाना है ना, दिल जीते बच्चों। दूसरा कहते हैं कि प्रोडक्ट वो बनेगा जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा हो तो वो बनेगा जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात सोचते हैं तो हम प्रोडक्ट P1 बनाना चाहेंगे, अगर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात सोचते हैं तो हम प्रोडक्ट P2 बनाना चाहेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन है। इफ़ यू फॉलो इंटरमीडिएट विल जस्ट गो फॉर द P1, इफ़ यू फॉलो प्रोडक्ट विल गो फॉर P2। इट्स पजलिंग सिचुएशन, कन्फ्यूजिंग, डाउटफुल, व्हाट वी शुड डू। आई मीन इट्स रियली वेरी कन्फ्यूजिंग। तुम क्या करेंगे बच्चों? हवन करेंगे? लेट्स सी क्या करेंगे। तो ऐसे केस में देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, चलो बाबा नागदेव का मंत्र सुन लो। रेडी बच्चों? बताऊं मैं, मजा आया इतनी बातें सुन के आपको? मेरी कहानी डॉक्टर इंजीनियर वाली और ये है ना। हे गाइस, हैव यू ऑल कनेक्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट? एंजॉइंग? देन आई विल से समथिंग एल्स, समथिंग मोर मिस्टीरियस देन दिस। ओह थैंक यू निहारिका एंड ऑल, ग्रेट। गुड, नाउ लिसन। अब एक अगली कहानी सुनो। अगली कहानी सुनो। कोई ऐसा है, थैंक यू ऑल बच्चों, थैंक यू। कोई ऐसा है जो IIT में सिर्फ पढ़ना चाहता है, मतलब उसको IIT पसंद नहीं है? कोई आपसे ऐसा मिले कि मेरा देखो IIT में भी हो गया था और IIT में भी हो गया था, लेकिन मेरा बचपन सपना था कि मैं IIT करूं, मैंने IIT छोड़ दिया। ऐसा कोई आपको मिल सकता है? हेलो गाइस, प्लीज़ रिस्पॉन्ड मी। कोई आपको ऐसा मिलेगा क्या कि मेरा देखो IIT भी निकल गया और IIT भी निकल गया, लेकिन मुझे मेरा बचपन सपना था कि मैं IIT में पढ़ूँ, इसलिए मैं IIT चला गया। नो, डेफिनेटली नॉट। कोई ऐसा मिलेगा, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो उसको कहीं भर्ती करा देना पागल खाने में, नहीं तो वो कुछ पत्थर तो उठा के मार देगा, समझ रहे हो? ओके ग्रेट, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। नाउ लिसन, हमारे देश में जितने बच्चे IIT में पढ़ाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो मामला क्या है, कोई बच्चा IIT में जाएगा या IIT में जाएगा, किस पर डिपेंड करते हैं? तुम समझ जाओगे तो ये समझ जाओगे। हे गाइस कम ऑन, ओके थैंक यू, लेट्स नाउ फोकस हियर। अभी जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कारण बताने जा रहा हूँ कि कोई बच्चा IIT में पढ़ रहा है और कोई IIT में, ये कारण समझते ही तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान सुनो, जो बच्चा कम मेहनती है, जो शुरू से ही कम मेहनत किया या टीचर को कम फॉलो किया या सपने छोटे देखा, मेहनत कम किया, एनर्जी कम लगाया, वो IIT में पढ़ेगा। क्योंकि वो IIT क्वालिफाई करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत किया, सपने देखा है, उस मतलब रगड़ के मेहनत किया, वो इतनी मेहनत किया कि वो IIT और IIT दोनों के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। जो बैरियर है दोनों का, अगर IIT का बैरियर वो
क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली ही और शी कैन इजली क्रॉस द बैरियर ऑफ IIT ऑब्वियसली। सो वो इतनी मेहनत किया कि दोनों क्रॉस कर गया, तब वो IIT में पढ़ेगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी है उसके पास तो IIT में जाएगा, और कम एनर्जी है तो ITI में। हे गाइस, आर यू ऑल अग्री विद मी? आर यू ऑल अग्री विद मी माई आइडिया दैट कोई बच्चा कम मेहनती है तो ITI में जाएगा, तो ज़्यादा मेहनती है तो IIT में जाएगा। ज़्यादा मेहनती है तो वो IIT और ITI दोनों में जा सकता है, वो दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन तब वो उस प्रोडक्ट को बनाएगा जो कि मोर स्टेबल है, मीन्स IIT। ओहो ग्रेट, थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा ITI में पढ़ रहा है वो भी IIT में पढ़ना चाह रहा था, लेकिन चूंकि IIT में पढ़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसलिए वो उसमें नहीं जा पाया। तो बच्चों अगर कोई रिएक्शन हम लोग, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, पहली दो तीन बातें बोलता हूँ पैरेलल में। ओहो थैंक यू ऑल, ध्यान सुनना। पहली बात, जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और उसकी एनर्जी कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। मैं क्या बोला, मैंने बोला कि इंटरमीडिएट किसकी कौन स्टेबल है, I1 की स्टेबिलिटी I2 से ज़्यादा है, एंड देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 का ज़्यादा होगा। इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है। ओके, फिर ध्यान सुनो, जिसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब उसको बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर पोर्ट बनेगा, तो इसको बनाने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी, जिसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होगी, जिसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होगी उसको बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, IIT एग्जाम के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ITI के लिए कम चाहिए, काम चल जाएगा। ओके, नाउ ये पॉइंट नंबर पहला है। दूसरा, सारे लोग, सारे रिएक्शंस वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। सारे बच्चे IIT में जाना चाहते हैं, ITI में नहीं। वो मजबूरी में ITI में गया है, तो सारे रिएक्शंस मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ओके, all reactions have tendency, all reactions have tendency, all reactions have, ये सब नोट कर लेना, बहुत बड़ी बड़ी बातें। टेंडेंसी टू फॉर्म, आज तुम्हें बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। बनाना तो देखो यही चाहते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, सारे रिएक्शन यही कहना चाहते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब सब P2 बनाना चाहते हैं, सब IIT में जाना चाहते हैं। जा क्यों नहीं पाए, क्योंकि इसके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि कैसे, अगर ऐसा हो कि IIT में जाने के लिए कम मेहनत करना पड़े, कि आराम सोए हो IIT में चले गए, आराम सोए हो और IAS निकाल लिया, आराम सोए हो प्रधानमंत्री बन गए, तो कौन नहीं बनना चाहेगा भैया, बता दो हमको। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो तो होगा ही है ना यार। उसमें कहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें खड़ा हो रहा है जिसमें एक में इंटरमीडिएट स्टेबल है और दूसरे में प्रोडक्ट स्टेबल है, यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। तो बच्चों ध्यान सुनो, मतलब ITI निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, उसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ITI निकालने के पहले लड़के अपना मस्ती उस्ती मार रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल खूब यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, चल रहा है मस्ती उनसे होगा। ITI करना है या नर्सिंग करना है, एम्स में जाना है, मौलाना आजाद जाना है, लेडी हार्डिंग जाना, अच्छे कॉलेज जाना है, या IIT जाना है, तो वो उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, रगड़ के मेहनत करना होगा। लेकिन तब जो प्रोडक्ट बनेगा, ओहो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना बात। तो सारे रिएक्शन से बनाना चाहते हैं, तो अगर रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा,
मेहनत वहनत नहीं किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे होगा। अगर रिएक्शन कम टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे, तो वो वाला अब मतलब बच्चों ने कम मेहनत किया तो कहाँ जाएगा सब, आईटीआई में। तो अगर कोई रिएक्शन कम टेम्परेचर पे होगा तो मजबूरी में मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जो लेस स्टेबल है, जिसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो लो टेम्परेचर पे हमको ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। कहें क्यों, कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बना दिया रे, कहें इसको बनाने के लिए जो औकात चाहिए है तुम्हारे पास, तो मजबूरी में वो बना है। क्या उसको कौन बनाया है, कि एक्टिवेशन एनर्जी ने उसको रोक दिया, क्या नहीं बनने देंगे। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा मिलता है, तो कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड, केसी प्रोडक्ट। कोई पूछे केसी प्रोडक्ट कौन है, तो बोलोगे वो प्रोडक्ट जिसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट जो लो टेम्परेचर पर हमको ज़्यादा मिलता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ज़्यादा मिलता है। इसको केसी प्रोडक्ट या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मज़ा आया कि नहीं हमको ये बताओ तुम लोग। ये पता है बहुत हवा टाइप का लगता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट विच इज कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये P2 अभी बताओ, ये ITI में लोग काहे एडमिशन ले रहे हैं, जिस दिन हमारे देश में ये हो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब IIT में आ सकते हैं, सब आ जाओ मस्ती से आओ, उस दिन से ITI में ताला लग जाएगा। तो हुआ क्या, ये P2 बनने के लिए जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके काइनेटिक्स ने, इसके एक्टिवेशन एनर्जी ने इसको रोक दिया कि ना तुम पारी नहीं कर पा रहे, तुम लापरवाह है, कम मेहनती नहीं है, कामचोर है, तुम चलो बनाओ तुम वो बनाओ जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, है ना। इट्स कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो लो टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट वो होगा, मैंने ये नहीं कहा कि 100% वो बनेगा, जानते हो क्यों। गैसियस मॉलिक्यूल अगर लिया जाए रिएक्टेंट बच्चों, तो किसी टेम्परेचर पे सबकी एनर्जी बराबर नहीं होती। एनर्जी का एक रेंज होता है, एंड आपने पढ़ा होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आपने सब पढ़ा हुआ है। कहते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी करता है उनकी वेलोसिटी, बाय द वे, तो सबका बराबर नहीं होता। तो किसी टेम्परेचर पर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो बैरियर क्रॉस करके IIT में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन चूंकि टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादातर की एनर्जी कम होगी और ज़्यादातर कहाँ जाएंगे, ITI में। ठीक है बच्चों, ओहो थैंक यू, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हम लोग लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हो। ये 100% नहीं होता है ना, मेजर मिलता है, ज़्यादा मिलता है। क्यों, किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो उस क्लास में मैं पढ़ाऊँगा तो प्रोबेबिलिटी हर तरह की रहती है। अच्छा क्लास होगा, बच्चे पढ़ने वाले अच्छे हैं तो ज़्यादातर बच्चे अच्छा कर जाएंगे, और क्लास में बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं तो उसमें कुछ तो अच्छे होंगे जो अच्छा कर जाएंगे। इसलिए जब मैं एज ए टीचर पढ़ाता हूँ, मैं पूरी जान लगा देता हूँ कि जो 2-4-10 तो अच्छे भी हों उनका कल्याण हो जाए, और बाकी अपना उठ के कहीं ना कहीं पहुँचे। ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, IIT मेडिकल नहीं गया तो कहीं ना कहीं पहुँचे ज़िंदगी में, एटलीस्ट साइंटिफिक बने, लॉजिकल बने, और जो हैं वो बन जाए। तो वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द प्रोबेबिलिटी। So here it's not the case of 100%. Even at the low temperature, when reactant molecules collide to not achieve such much large amount of activation energy that is required for the P2, but can attain that is required for P1. So P1 will be the major product, and that's kinetically controlled product. Kinetics has controlled the product. That's great. Hey guys, बहुत बढ़िया। अब देखो, लेकिन हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करें, कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करें, तो अब सभी की एनर्जी इतनी है कि वो IIT और ITI दोनों ने क्वालिफाई कर लिया। अब वो कहाँ जाएगा, ITI में क्या IIT में, IIT में जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम पागल घोषित कर देंगे। अगर उसकी एनर्जी, अगर वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है तो हमें वो दोनों क्रॉस कर सकता है, तो वो ये वाला बनाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि सभी रिएक्शंस की इच्छा होती है कि वो प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हाई टेम्परेचर पर
मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है और ये हमको ज़्यादा मिलता है, तो कहते हैं इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसको एनर्जी ने कंट्रोल किया, ला एनर्जी लो जाओ बन जाओ, और इसको किसने रोक दिया है? एक्टिवेशन एनर्जी ने रोक दिया है। इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तुम लोगों को मजा आया कि नहीं हमको ये बताओ पहले बच्चा लोग। अरे बचुआ, तुमको मैंने क्या पढ़ाया ना? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये कब अध्ययन करेंगे? व्हेन a reaction can takes place in multi ways in which one way have more stable intermediate and another way has more stable product. Oh, thank you all. Great. भूलना नहीं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। It's very 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 important. Okay? चलो अब मैं इसको देता हूँ मिटा। तो एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, ऋतिक थैंक यू, सक्षम, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो बनता है ये लो टेम्परेचर बनता है और ये मजबूरी में बन रहा है, क्योंकि बनाना तो ये भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहता है, बट उसको बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाया एक्टिवेशन एनर्जी, तो मजबूरी में बन गया। दैट इज़ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, राइट। और ये जो P2 बना है ये दोनों बन सकता था, P2 और P1, लेकिन ये चूंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है तो वही बनाएगा जब उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं तब। ओके गुड। सो नाउ ये सारी बातें आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर लेना। और जैसा मैंने कहा था किसी को ज़रूर समझाना, किसी को भी, कोई न मिले तो रूम में बंद होके अकेले ही अपने आप समझा लो, बट ज़रूरी है किसी समझाना, समझाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। नाउ सी बच्चों, अब ये 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन में ये सब बातें मैंने क्यों किया? अगर बच्चों इसके ऊपर मैं Br2 का एडिशन करूं, Br2 इन है ना CCl4 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ये ना Br2 Br प्लस और Br माइनस में टूट जाता है, राइट। या कोई भी मैं ले लूँ, मैं Br2 इसलिए लिया कि मैं सिमेट्री चाह रहा था। ओके बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा हूँ। देखो क्या होने वाला है, बहुत ध्यान समझना आप लोग। ये पाई बॉन्ड पहले एक चीज़ ध्यान सुनना, एक चीज़ है ना, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, दिस कॉल्ड 1, इधर की टूटेगा या इधर की तरफ टूटेगा, कॉल्ड 2। ये पाई बॉन्ड उधर की तरफ टूटेगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जिधर टूटने से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आई बिलीव कि आपको पता होगा। ओके सो अगर मैं देखो बच्चों 1 की तरफ तोड़ूंगा, ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव पर ये एल्किन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव इंटरमीडिएट बनेगा और ये पॉजिटिव इंटरमीडिएट इसके साथ कंजुगेशन में होगा और स्टेबल होगा। यू कैन सी दिस वन। अगर मैं 1 की तरह करता हूँ तो C डबल बॉन्ड C यहाँ प्लस आ जाएगा और ये माइनस पे क्या आएगा बच्चों, CBr। कौन सा एडिशन हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। ये हमारा इंटरमीडिएट बना एंड हम देख सकते हैं कि इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये रिएक्शन में 2 की तरह किया होता, किसकी तरह? 2 की तरह, वो भी देख लो आप, तो यहाँ निगेटिव आता, वो ध्यान से देखो, और यहाँ हम Br जोड़ देते और ये प्लस हो जाता। यहाँ ये कार्बोडाइन कंजुगेशन में नहीं है तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं ना। तो रिएक्शन किसकी तरह होगा? 1 की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। ओके नाउ अब ये जो इंटरमीडिएट बच्चों ये रेजोनेंस में है, वी आर सीइंग दिस, ये पाई से पाई यहाँ शिफ्ट हो सकता है। अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा? यू कैन सी, यहाँ पॉजिटिव आ गया। नाउ हियर वी हैव 2 इंटरमीडिएट्स। ओके, इंटरमीडिएट दिस वन एंड दैट वन। ओके बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट हो गया। इसका नाम दिया मैंने इंटरमीडिएट 1, इसका नाम दिया इंटरमीडिएट 2। कैंसर उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं, ये कंजुगेशन ही छोड़ दिया है तो बहुत दूर चला गया है, बहुत ही लेस स्टेबल है ना। तो हम इन दोनों की बात करते, दोनों बनेंगे। अब इन दोनों में अगर देखो ध्यान समझना, इसके ऊपर अगर Br माइनस अटैक कर देता है, यहाँ रिएक्शन किसका होना है? Br प्लस और Br माइनस का। पहले कौन अटैक किया? Br प्लस। क्यों? बिकॉज एल्किन
has tendency to give electrophilic addition, this one is electrophile, and now these two are intermediate. So now it's turn of Br minus. This is carbocation. Carbocations have tendency to give nucleophilic addition. That's all we have seen already. So see बच्चों, this Br minus will make attack here, and क्या बन जाए देखो, यहाँ Br चला जाएगा, बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ आएगा Br, यहाँ आएगा Br, और अगर यही Br माइनस बच्चों यहाँ अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C Br, और ये Br, ये इंटरमीडिएट I2 है तो से दिस प्रोडक्ट एज अ P2, हियर इंटरमीडिएट I1 तो से दिस प्रोडक्ट एज अ P1। अब मैंने यहाँ I1 I2 P1 P2 ये सोच के लिखा है जैसा मैंने बताया था। मतलब जानते हो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बच्चों। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट I1 की I2 से ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट P2 की P1 से ज़्यादा होगी, और इसीलिए ये हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नाउ अगर मैं कार्बन की नंबरिंग कर लेता हूँ बच्चों, सी 1 2 3 4, सो अल्टीमेटली इफ यू ऑब्जर्व हियर 1 2 पे एडिशन हुआ, किसका, Br का। यहाँ एडिशन कहाँ हुआ, 1 और 4 पे एडिशन हुआ, इट इज कॉल्ड 1-4 एडिशन, एंड दिस वन इज कॉल्ड 1-2 एडिशन। ये 1-2 एडिशन हुआ है। तुम ये कह सकते हो कि सर ये रेजोनेंस में क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चों ध्यान सुनना, अगर रेजोनेंस न होता तो पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ पर है, तो 1-4 एडिशन हम सोच ही नहीं पाते। या तो इस डबल बॉन्ड पे एडिशन करते या फिर इस डबल बॉन्ड पे, यहाँ करते तो भी 1-2, यहाँ करते तो भी इधर से काउंटिंग करते 1-2 हो जाता। लेकिन ये चूंकि ये जो बना है ये रेजोनेंस में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, इट्स एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, just because of this resonance we are capable to have the product 1-4 addition। नहीं तो 1-4 addition हम सोच ही नहीं सकते थे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तुम्हारा हो सकता है डाउट यहाँ पर हो कि सर ये स्टेबिलिटी क्यों है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बताओ भाई बच्चों, ये समझ आया। आदित्य यादव कह रहे हैं एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू आदित्य। मैं तुम्हें एक बार और समझाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं जानता हूँ जो ये सब है पूरा क्वेश्चंस हैं, आगे एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं, आगे जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा उसके लिए सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अरे यार तुम लोग समझ गए हो, मैं कह रहा हूँ दोबारा समझाना है, तरह से तैयार हो गया हमारा। वाह ग्रेट यार, ग्रेट, वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। जैसे मैं तुम लोगों को ऐसे बोलता हूँ ना, शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब, वैसे मैंने ना 9th तक उर्दू पढ़ा है। मेरी उर्दू मैम थी, वो घूंसे मारती थी, कहती मक्कार, जल्लाद, एक आग साथ 3-4 तो ऐसे ही बोलती थी वो लगातार, बदमिजाज, बदतमीज, बदसकल्लू, समझ बताएं क्या बोल देती थी। बाय द वे, चलो कौन, लेट्स सी, एक बार और बताता हूँ, तुम कूल माइंड से सुन लो ताकि तुम लोग एकदम समझ जाओ इसको। मैंने क्या बताया बच्चों, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1 2 3, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन है बच्चों। इसमें Br2 का एडिशन कर रहे हैं। ओके, सो ये या तो 1 की तरफ टूटेगा या तो 2 की तरफ, एंड वी हैव सीन कि 2 वाले में लेस स्टेबल बनना है, इसलिए 2 वाला नहीं होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू 1, ये 1 वाला होगा क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एंड दिस कार्बोटाइन इज इन कंजुगेशन, देयरफॉर इट कैन डिलोकलाइज टू दिस कार्बन एटम एज वी हैव सीन। सो अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट विल बी P1, वो बनाएगा तो प्रोडक्ट विल बी P2, दैट्स ऑल। सो सी दिस वन इज स्टेबिलिटी का क्रम क्यों है ऐसा बच्चों। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का, जो कि मैं आपको इसके बाद पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। इसका रोल है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का। सो रियली आई एम फीलिंग लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल टू एक्सप्लेन यू गाइज, बट फिर भी मैं इसकी बात थोड़ा कर सकता हूँ। देखो ये 2nd डिग्री कार्बोकेटायन है, 2nd डिग्री, या ये समझ लो तुम कि तुम इसको छोड़ दो,
और इसमें ना काउंट करते हैं हम लोग, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होता है, जिस कार्बोकटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये कैसे मालूम चला? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। या जिस एल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये तुम लोग अभी इसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, जब मैं एच इफेक्ट पढ़ा लूँगा अगले 2 दिनों में तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना। ओके ओके बच्चों, हेलो गाइस। अभी बताऊंगा तो ज़्यादा मेहनत करूंगा और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा, मतलब तुम बोर ही होते रहोगे। क्या है, पढ़ाया नहीं ना तुमको, तो लेकिन पढ़ाऊंगा तुम तुरंत समझ जाओगे। चलो देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि ये 1,3-ब्यूटाडाइईन में अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, 1,2 एंड 1,4। और आपको पता है इसमें टीसी केसी कौन है? ये केसी है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट की यही है, P1 वाला है, इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी बट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, और इसको बोलते हैं टीसी। टीसी मैं बताऊं, अगर हम लोग टेम्परेचर और परसेंटेज की बात करते हैं, किसकी? 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना बच्चों, बच्चा लोग सुनो रे। अगर हम रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करें या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको रूम मान लिया जाए तो जानते हो 1,2 वाला कितना बनता है? रूम टेम्परेचर यहाँ हाई टेम्परेचर की तरह लिया जाता है। रूम टेम्परेचर क्या लेते हैं हम लोग? रूम टेम्परेचर 20 डिग्री या लिखा हो हाई टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इसके लिए हाई टेम्परेचर माना जाता है। कौन टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है ये डिपेंड करता है किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, किसके तुलना में बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं या 20 डिग्री पे या हाई टेम्परेचर पे, तो 1,2 वाला हमको बच्चों कम मिलता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर है तो दोनों बन सकता है। तो वो बनेगा जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये 20% और ये 80%। जानते हो मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हम उसको सोच भी नहीं पाते, और बना कितना है? 80%। जो 80% बना है इसको हम सोच भी नहीं पाते कि बन सकता है। वाह। और अगर यही रिएक्शन बच्चों हम लोग अगर यही रिएक्शन हम लोग करते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखो इसके तुलना में हाई टेम्परेचर हुआ कि नहीं, या लो टेम्परेचर पे करते हैं, सवाल में ऐसा कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर रूम टेम्परेचर लिखा हो या हाई टेम्परेचर लिखा हो या 20 डिग्री लिखा हो या कुछ नहीं दिया हो, सवाल में कुछ नहीं दिया है तब भी हम रूम टेम्परेचर मानेंगे। इसे नोट कर लेना है। तो हम लोग 1,4 प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर -40 या लो टेम्परेचर लिखा है, ये मिलता है हमको 60% ज़्यादा हो गया और ये मिलता है 40%। और टेम्परेचर और कम कर दोगे, मतलब लोग और कम मेहनत करेंगे तो IIT में और कम पहुँचेंगे और ITI में ज़्यादा पहुँच जाएंगे। अब मेहनत और तगड़ा करेगा तो ये परसेंटेज विल वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हे गाइस, मज़ा आया कि नहीं? और ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिएक्शन हैविंग मोर देन 1 प्रोडक्ट्स एंड 1 प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, मजा आया कि नहीं ये बताओ तुम लोगों को, है ना? वाओ, थैंक यू पवन, शिवम एंड संकेत, श्रेया। लेट्स, मैंने क्या बोला कि 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ओह, ये समस्या क्यों खड़ी हुई? क्योंकि एक में इंटरमीडिएट स्टेबल है और एक में प्रोडक्ट स्टेबल है। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है, नथिंग। इन सारे सिचुएशंस में ये कम बनेगा, मैंने कहा 20%, और ये बनेगा 80%, है ना बच्चों। लेकिन अगर सवाल में मैं याद करवा रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ यार,
सवाल में लिखा हो लो टेम्परेचर या लिखा हो -40°C, ये बन गया 60% और ये बन गया 40%. एंड दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड TC प्रोडक्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड KC प्रोडक्ट. Kinetically controlled. Activation energy has controlled the formation of this one. The high activation energy of one pore does not allow other reactant molecules or all reactant molecules or maximum reactant molecules to form the product at low temperature. So at low temperature और high temperature सब बन जाएगा. ओहो ग्रेट. चलो अब मस्ती के अगले दौर में चलते हैं. हम लोग खूब मस्ती मारने वाले हैं. देखो मस्ती मारने वाले हैं हम लोग अगले दौर में. चलो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. क्लियर? सी बच्चों मैं एक बात बताऊं, मैं अंदर की बात. एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, वो ध्यान समझना, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया. ये एक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऐसे से आगे जा रहा है. आपने देखा होगा, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं. ये क्या बच्चों? रिएक्टेंट. दिस वन इज रिएक्टेंट. और ये क्या हमारा? ट्रांजिशन स्टेट 1. ये है एक्टिवेशन इंटरमीडिएट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये हमारा है प्रोडक्ट. ओके. एंड ये जो बैरियर है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ओके. नाउ ध्यान सुनना मेरी बात को. बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ. छोटी बातें बोलना बंद कर दिया हूँ मैं आजकल, समझ रहे हो? बहुत ध्यान सुनना, मजे लेना. मैं मतलब केमिस्ट्री पढ़ाते हुए सोचता हूँ कि बड़ा आध्यात्मिक टाइप की बातें चलती रहती हैं केमिस्ट्री में, इतना कॉन्सेप्चुअल है. अभी कल मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिला जिनसे मेरे बड़े ही अच्छे रिलेशनशिप हैं. तो बता रहे थे कि जब वो पढ़े थे तो केमिस्ट्री के मास्टर बहुत बोरिंग मिल गए थे. मैंने कहा भैया जो आप कह रहे हैं ना, ये 95% लोगों का यही होता है कि आगे पूरा फटाफट रिएक्शन लिख दिए. इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज, रेजोनेंस इज डिफाइंड एज, फलान. ये क्या डिफाइंड एज है? कुछ समझाएंगे भी, वो है क्या चीज़? बस डिफाइंड एज चला जा रहा है. पूरा रिएक्शन धक्का लगा के लिख खत्म कर दिए. कुछ लोग तो नोट से पढ़ाते हैं. कुछ बदमाश बच्चे जो है नोट्सवा चुरा लेते हैं. नोट्स चुरा लिया तो उस दिन गुरुजी की तबीयत खराब हो जाती है. कहते हैं आज क्लास नहीं ले पाएंगे. क्यों? कि भयानक तबीयत खराब हो गई. अगले एक हफ्ते बैठ के फिर दूसरा नोट्स तैयार करते हैं. हालांकि ये गलत काम, ऐसा नहीं करना है. और मैं गुरुओं के मजाक के भी खिलाफ हूँ, लेकिन गुरु हो तब ना, सच्चा गुरु हो तब ना, उसको मेहनत करना चाहिए. बच्चों की इतनी जिंदगियाँ हैं उसके पीछे. तो मैं इसलिए थोड़ा नाराज़गी प्रकट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री को रट के उल्टी कर देते हैं बच्चों के सामने. वो साइंस की जगह उसको हिस्ट्री बना देते हैं, केमिस्ट्री को हिस्ट्री बना देते हैं. साइंस है भैया, उसको चखो, स्वाद लो, खाओ पियो, मस्ती मारो. क्या कर रहे हो? अभी यहाँ डूबना देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है. मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इंटरमीडिएट, हम इंटरमीडिएट जो है उससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं मेजर करते. सुनना ध्यान से. मैं भी क्या बोला तुमसे? मैं कहा था कि इंटरमीडिएट I1 की स्टेबिलिटी I2 से ज़्यादा है और इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी EA2 की वैल्यू EA1 से ज़्यादा है. मैं कहा था अभी आपसे. अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान समझना. मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ट्रांजिशन स्टेट से मेजर करते हैं, इंटरमीडिएट से नहीं. बट यहाँ पे तो आपने कर लिया. हुआ क्या है, ये इंटरमीडिएट किसने बनाया है? इसके पापा कौन हैं? इसका पापा ट्रांजिशन स्टेट है. मतलब ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन किए हो तो ये बन गया है. और ध्यान सुनना, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ और ये नोट कर लेना हमेशा के लिए. ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन किए, ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है. पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये बना, ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे. तो बच्चों इसमें थोड़ा सा वेरिएशन की हो तो ये बना है. मतलब जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होगी उसके पहले जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी. मतलब अगर इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो उसके पहले वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसको मैं 2 बोलूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वन, या डैश लगाता हूँ, तो ये इसकी स्टेबिलिटी भी, ये स्टेबिलिटी
इसकी स्टेबिलिटी भी ट्रांजिशन स्टेट 1 से कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? इंटरमीडिएट ट्रांजिशन जस्ट बाद बनता है, तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी तो और ज़्यादा होगी, तो जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होगी उसकी और थोड़ी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब यू कैन से वी कैन को रिलेट ट्रांजिशन स्टेट विद इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत खूबसूरत है यार। मैं इसे इसलिए बोला हूँ, जब मैंने पहली बार सीखा था ना मुझे इतना मज़ा आया था। हम कह रहे ये है क्या, मतलब मुझे बहुत आनंद मिला था जब मैं इसको पढ़ा था। आई वॉज इन कन्फ्यूजन कि यार हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज derived from the value of intermediate, it's not fair, but once I just go through these contents, oh it's beautiful। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में मेरी आ गई होगी। हम चलते हैं, कुछ और बताए तुमको। ये जिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं एक ऐसे रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो 2 रास्तों से हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं एक ऐसे रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो 2 रास्तों से हो रहा है। मतलब रिएक्शन दोनों शुरू यहाँ से हुआ है ना। एक में इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा है, ये देखो रिएक्शन एक ही है, ये देखो वो ध्यान समझना, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, और ध्यान समझना। अरे बाप रे बाप, ये देखो प्रोडक्ट P2 है, प्रोडक्ट P1 है। ओके, तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी E2 और एक्टिवेशन एनर्जी E1। चलो ना कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, कैसे भी सिखाऊंगा भाई, नचा दूंगा तुमको मैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग ELD, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो P2 प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल। लेकिन P2 बनने के लिए आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचा पाओगे तो नहीं बनेगा। तो अगर कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, अगर कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो ज़्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो बेचारे मजबूरी में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, P1 बन जाता है। तो ये हमारा KC प्रोडक्ट हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर, मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, लो मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो वो ज़्यादातर इसको क्रॉस कर जाएंगे, उनके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो ये झंझना के फिर कूद के यहाँ आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा जैसे TC प्रोडक्ट, और ये कब बनेगा? हाई टेम्परेचर पे, है ना। ये बनेगा हमको हाई टेम्परेचर पे मिल जाएगा, हाई टेम्परेचर। वाह, मज़ा आया कि नहीं? आप बताओ, अब क्लियर हुआ? अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर अब वो ये बन ही नहीं पा रहा है, तो मजबूरी में रिएक्शन यहाँ शुरू हुआ, ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ आ गया, है ना। अब हाई टेम्परेचर पे होगा तो फिर अपना ठीक है। टाइम हो गया क्या? यार बच्चों, आज तो मैं ख़त्म ही नहीं कर पाया रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम लग गया। चलो एक क्लास और है ना, एक क्लास और दे देते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग, सवाल, और फिर क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। आज की क्लास में मैंने आपको 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन को बहुत डिटेल में समझाया। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो डिस्कस TC एंड KC प्रोडक्ट। अभी तो बताया यही वाला, सेम बताया हूँ, सेम क्वेश्चन दे दिया हूँ, है ना। तो ठीक है, आप कर लेना। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में अगले, ये तो कराया ही मैंने अभी, कराते हैं अगली क्लास में। मैं आपको अगली क्लास में कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा। माइकल एडिशन बचा हुआ है, डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, तो रिमेन्स एक्साइटेड फॉर द कमिंग क्लास। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखा हमने। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट आई कैन टेक फीडबैक एंड अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान माई द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।